we are not going to rely on the situation. We have to come up with a plan immediately. हम hem and haw में, hemming and hawing में time waste नहीं कर सकते, because हमारा future suffer करेगा, हमारी job suffer करेगी, हमारी family suffer करेगी, हमारे बच्चे suffer करेंगे, eventually हमारा घर suffer करेगा. At the end of the day, ये सफ़र करेगा. So अगर कोई बंदा proactive नहीं है और उसको वो अपनी जॉब में बहुत अच्छी सैलरी है, कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हुए हैं, तो फिर तो कोई कॉज नहीं है मेरे पास. I don't have a drive to change. So फिर क्या? अस्सलाम वालेकुम. How are you all? Do you know my name? Yes. Really? How do you know my name? Okay, so what is my name? My full name? Mehvish Sultana. Mehvish Sultana. That's bingo. That's great. And what do I do? Do you know that? Very good. Very good. I'm a corporate trainer. How do you know so much? I'm a social worker as well. And I'm proud to be English teacher. teacher. I'm proud to be a teacher. That's wonderful. You guys have done your homework. अच्छा, I'm going to show you a few things. आपने मुझे ये बताना है. आपको A ऑप्शन और B ऑप्शन देने जा रही हूँ. ठीक है? आप कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे और क्यों? So अगर आपको नहाना है या मुंह धोना है इमरजेंसी में, तो आप इस पानी से धोएंगे या इस पानी से धोएंगे? Are you sure? I didn't hear you. B. Okay. आपने अपना मेन्यू डिसाइड करना है वीक का. आप A चूज करेंगे या B चूज करेंगे? Who said A? मुझे लगा किसी ने कहा A. So if you want to choose B, आपको ऊंचा कहना होगा. B. Why? आप में से कोई बताएगा कि B आप क्यों चूज करेंगे? ये कोई एक चीज कंसिस्टेंटली नहीं चल रही है. It's a combination of different dishes. So we have variety. That's what you want to say? That's lovely. So ये एक क्लासरूम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है. इस यूनिवर्सिटी में वीक में ये क्लासेस हैं और उसमें A ऑप्शन में ये क्लासेस हैं. आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करेंगे? B. Why? यहाँ से कोई, यहाँ से कोई, यहाँ से कोई. Because we get bored of the same pattern and we want something different on daily basis, so that's why. So do you think it offers variety? Yes. So it is not consistent, as he said earlier. That's wonderful. मैं से ही पूछना पड़ेगा. So which wardrobe do you want to have? किस तरह से आपका pattern A है? Do you dress up in the same clothes every day? Yeah, you want to have different clothes on different days? A. A? My favorite time. I'm not waste my time on one dress. But you wash it, right? No. You don't wash it? According to Mark Zuckerberg, you have not waste time on another dress. Just wear it and go for work. Even if it is stinking? Uh-oh. Okay. So that's okay. That's your option. ठीक है. हम कभी-कभी हालात के लिहाज से अपने आप को change नहीं करते हैं. ठीक है. So most of you will go with A or B? B. गाड़ी के कितने पहिए हैं? 4. So ये मियाँ बीवी वाला पहिया नहीं है. So come out of that. You know, जब भी गाड़ी के 2 पहियों की बात हो, so 2 नहीं 4 हैं. So if one of the tire is flat, what would you do? Why do you change that tire? To move on. To move on. अगर आपका गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया है, can you move on? No. So if you go back to the very first slide with which we started, what is the crux of the whole thing? What do you think? Crux क्या निकला? Change is necessary in life. Change is necessary in life. आप कुछ तो बोलना पड़ेगा. क्या ख्याल है आपका? आपने क्यों ऑप्शन नंबर B चूज की? So डिफरेंट चीज़ें हैं, वैरायटी है और हमें वैरायटी पसंद है. इफ आई गो बैक हियर, डू यू लाइक इट? ये पानी गंदा क्यों है? इसमें गंद पड़ा हुआ है, ये रुका हुआ है और साफ नहीं. तो साफ क्यों नहीं है? साफ नहीं क्योंकि गंद पड़ा हुआ है. गंद क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि रुका हुआ है. सो ओके, सो वी गोना रोम अराउंड हियर. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे उन्होंने कहा कि ये बदल नहीं रहा,
ये पानी खड़ा हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, और जो भी चीज़ एक जगह रुकी हुई है इसका मतलब है कि वो क्या गैदर करती है, वो क्या गैदर करती है। अगर एक चीज़ जगह पड़ी रहे तो वो क्या गैदर करती है, मट्टी, डस्ट। अगर आपका कोई स्किल, हम या तो आप और आपकी क्वालिटीज़ और आपकी स्किल सेट या तो इम्प्रूव कर रहा है, और अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, आप उसको बेहतर नहीं बना रहे, तो ये मत समझें कि वो आपका स्किल सेट वैसे का वैसा है। वो क्या कर रहा है, वो डिटीरियोरेट हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये जो हमारा लाइफ का रास्ता है ना, इट्स लाइक अ स्लॉन्ट। सो ईदर यू आर गोइंग अपवर्ड और यू आर गोइंग डाउनवर्ड। आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ, do you remember, on the ball, active, and energetic, and you have to keep on working on your skill sets. जो भी है आपका, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, फोटोग्राफी, लेक्चररशिप, let it be electrical engineer, कुछ भी है आपका स्किल, उस पर काम करते रहें। एक जगह खड़े रहेंगे तो you would start smelling. आपका स्किल, आपका वो काम जो है वो स्मेल करना शुरू कर देगा। एंड वाई दिस वाटर इज सो फ्रेश एंड ब्यूटिफुल, यू सी इट्स मूविंग, एंड दैट इज़ वाई। दैट्स वंडरफुल। सो लेक्चर तो सारा आपने फिगर आउट कर लिया, अब मैंने क्या करना है? राइट ये एक सीड है, हमने इसको मट्टी में दबाया और उगा दिया। अब आप 10 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, और ये ऐसे का ऐसा है, तो क्या होने जाएगा? क्या करेंगे आप? महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, और ये सीड ऐसे का ऐसा है मट्टी में, तो फिर हम पानी डालेंगे, हम मेहनत करेंगे, वेरी गुड, और फर्टिलाइज़र डालेंगे, हम तो मेहनत करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें से कि पौधा बनेगा, ठीक है, और वो नहीं हो रहा, तो क्या ये ठीक है? हम इस सीड को संभाल के रखेंगे? नहीं, इसका मतलब हम इसको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमारे स्किल्स की और हमारी लाइफ की एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर सीड एक है और इसमें से कोई कोम्पल नहीं फूट रही, इसमें से जड़ नहीं निकल रही, इसका मतलब है ये वेस्ट है, ये फॉल्टी चीज़ है। बिकॉज़ इसकी शक्ल चेंज होनी चाहिए है। अगर इसकी शक्ल चेंज करेगी, ये अपनी शक्ल चेंज करता है, इट इज़ इक्वल टू ग्रोथ। तो इसका मतलब है ग्रो कर रहा है, प्लांट बन रहा है, तो इट हैज़ पोटेंशियल, इट इज़ वर्दी। सो इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग चेंज, इट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, एंड इफ यू आर चेंजिंग, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग। एक सेइंग है कि अ रोलिंग स्टोन डज नॉट गैदर एनी मॉस। इसका मतलब ये है कि चेंज इतनी भी रैपिड नहीं होनी चाहिए है कि आप कोई स्किल अपने साथ जोड़ के रख ही ना सकें, ठीक है ना? सो यस, लर्न, टारगेट अ स्किल, एक्वायर इट, वर्क ऑन इट, पानी डालें, खाद डालें, कोई नई चीज़ डालें, उसको देखें, शेड चाहिए, अब धूप चाहिए, क्या चाहिए उसको, एंड वंस यू थिंक दैट यू हैव रिसीव्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट, देन यू मूव ऑन। ऐसा नहीं कि बस बीज उगाया और अगली क्यारी, बीज उगाया और अगली क्यारी, पिछला पता ही नहीं क्या हो रहा है। दैट इज़ यूजलेस। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कि जो लोग बिल्कुल बदलते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की, नहीं पसंद आई, दूसरी इंजीनियरिंग स्टार्ट की, नहीं पसंद आई, IT स्टार्ट की, नहीं पसंद आई, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर तो खैर इतनी ज़्यादा, टीचर बन गए टीचर बन गए। सो वो गलत है। इसका मतलब है आपने कुछ नहीं सीखा, आपने कुछ लर्न नहीं किया, और आपके पास ऑथेंटिसिटी और आपके नॉलेज में क्रेडिबिलिटी नहीं है। So we need to stick to that plan for a while, and once you're sure that you have learned it and acquired it, then you would move on. So don't be a rolling stone, but don't be stagnant water as well. खड़े नहीं रहना, ठीक है? So far it is clear? Yes. It has to be, क्योंकि बता तो आप लोग रहे हैं, मैं तो बस slide change कर रही हूँ। Okay, now the question is change and to change easy for you? So I'm going to ask you people one by one. प्लीज़ कुछ लोग मुझे बताएं, आप लोगों के लिए बदलाव या अपने अंदर बदलाव लाना कितना आसान है? कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, नए दोस्त बनाना, नई जगह में अपनी जगह बनाना। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी,
चेंज कभी भी इतना इजी नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं। बहुत चेंज कभी भी आसान नहीं होता. ओके, बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है. ठीक है, प्रीवियस हैबिट से बाहर निकलना पड़ता जैसे वो जो सीड है वो बड़ा कोजी है ना उस ज़मीन के अंदर, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आएगा तो उसकी जगह नया सीड आ जाएगा और वो सीड कोई फेंक देगा उठा के. अगर कोई इंसान उसको फेंकेगा नहीं तो नेचर अपना काम दिखाएगी, नेचर उसको वेस्ट कर देगी, इंसेक्ट्स खा जाएंगे, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सोयल. सो येस, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वेल डन. ये वाली रिस्पेक्टेबल रो में से कोई बोलेगा आपके लिए चेंज कितनी आसान है? अच्छा, चेंज सिर्फ एक सूरत में भी हो सकता है कि उसकी कॉज क्या, अगर उसकी कॉज जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अहम है, तो फिर लेट्स सपोज कि एक पर्सन है वो मेडिकली अनफिट है जी. तो डॉक्टर्स ने उसे जवाब दिया, डॉक्टर्स ने कहा अगर आपने ये स्टेप्स लिए तो फिर आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. जी जी. तो अब उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, वो सिगरेट है तो सिगरेट छोड़ देगा, अगर डॉक्टर ने कहा है आपने मीठा नहीं खाना तो वो छोड़ देगा. यानी कि सर पे पड़ेगी तो चेंज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर सर पे नहीं पड़ेगी तो हमारे लिए मुश्किल है अपने कंफर्ट जोन से आना. इज दैट करेक्ट? ये आपने इन जनरल बात की है या अपने लिए बात की है? मैं वैसे हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि अगर चेंज है और उसकी कॉज, क्योंकि अब जो कॉज So आपकी ड्राइव क्या है टू चेंज? डू यू हैव सम रीजन, अ सॉलिड रीजन behind? But my question, thank you very much for your input and you're absolutely correct there. So how difficult it is for you to change, let's say? It's really difficult for me to change. It is. Hi Zishra, walaikum assalam, how are you? So it is difficult for you? So हम बड़ी कॉमन चीज़ों की चेंज के बारे में बात करते हैं. आप में से कितने लोग कंफर्टेबल, आपसे नहीं पूछूंगी, हेयर कट को लेके अपना हेयर स्टाइल चेंज करना. रेज योर हैंड अगर बड़ा आसान है. मैं किसी वक्त भी बाल दिल के छोटे कर लिए, लंबे कर लिए, इधर से मांग निकाली, इधर से मांग निकाली. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फॉर अस टू चेंज आवर हेयर स्टाइल? रेज योर हैंड्स. पूरा पूरा हफ्ता सोचना पड़ता है कि साइज से बनाना है, ऐसे बनाना है. Is it easy or not? Raise your hand. Easy. Easy. Hairstyle is easy. So men are very comfortable. Very good. What about you people? Easy or not easy? No, not easy. For females are more conscious about how pata nahi kaisi lagungi. So we are conscious about our looks and not easy. Very good. How about your location? Shehar badalna. Easy, not easy? Not easy. Not easy. What are you afraid of? क्योंकि आपके अटैचमेंट्स होती हैं जगह के साथ, फिर रिलेशनशिप्स होते हैं आपके उस जगह के साथ. और नई जगह का मतलब नए रिश्ते, नए लोगों में अपनी जगह बनाना. ओके. नई जॉब, आप एक जगह सेटल डाउन हो गए हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, सारा काम लर्न कर लिया है. सो वुड यू लाइक टू मूव ऑन टू अ न्यू जॉब? वुड यू टेक द चैलेंज ऑफ चेंजिंग योर जॉब? हाउ ईजी इट इज़? कैन यू टेल? अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली आपको जाना चाहिए. जाना चाहिए. So I'm going to ask about yourself. You're talking for yourself, right? Not in general. So how many of you, for it is easy to think कि हाँ नई जॉब है, try करनी चाहिए. Oh, that's a little number. Okay, so now you have been inspired. अपनी look change करना clothes में. Not easy. अच्छा, अपीयरेंस में कोई भी चीज़ है वो मेन के लिए ईजी है, यहाँ पे ईजी नहीं है. क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. दैट्स ग्रेट. रिलीजन में हम लोकेशन की जो एक सिंपल सी बात करते हैं, हिजरत के बारे में क्या कहा गया है? हिजरत में बरकत है. डोंट स्टिक टू वन प्लेस. बी रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि इसमें बरकत है. आप नए लोगों से मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए स्किल सेट मिलेंगे. राइट? सो हिजरत में बरकत है, विच रिफर्स और विच टेल्स अस कि चेंज इज़ गुड एंड चेंज इज़ पॉजिटिव. Change is the only thing which should be unchanged. It has to remain constant. Nature also teaches us, like whether it's animal, plants, or human being, everything gets over with the passage of time. So it's Yes. change. Yes, अगर एक बच्चा है, जैसे इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, it's not with the plants. अगर एक बच्चा है, खुदा न खास्ता अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है? Is it natural? Is it normal? It is abnormal. It is a big problem. Right? And it means a big abnormality. Right. So can you think of a recent change that you accepted, and what was that? Any new marka जो आपने मारा हो कि मैंने ये change अपने अंदर लेके आया और accept किया इसको. मैं काफ़ी ऐसे से ABC कर रहा था and then I changed myself. या कर रही थी. Anything? Think. So take a good minute. You can close your eyes.
revisit your memory. I want you to bring back something. Recently आपने change कहाँ अपने अंदर डाली? Yes. In terms of गुस्सा, तो उस पर आप, हाँ जी, इनके colleagues. अच्छा, और कोई? You changed your job? Okay, was it difficult? But you did it. Very good, ladies. I used to be extremely dependent on people around me, or maybe you say that I got extremely attached to the people around me. So whenever someone leaves the job, I started crying, and even I remained in depression for few days. Oh my. So now recently my best friend left this job. Who? Farwa. Has she? Yes. Okay. So I thought कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहूँगी, लेकिन अब मैंने ये चेंज करना शुरू कर दिया है. That's very good. That's a good thing that you have learned. Very nice. और कोई आप लोगों में से? मैं एक्सरसाइज करता हूँ, नहीं करता. So आपने अब recently exercise करना शुरू किया. That's important. So it means कि हमने अभी अपनी recent life में कोई change नहीं लेके आए. Which also means कि लेके आने की अब ज़रूरत है. Because you don't want to be like that water. Do you want to be like that water? Do you want to gather dust? No. So it's a checkpoint. आपके लिए एक checkpoint है कि मैं कितने अरसे से अपने अंदर कोई change नहीं लेके आया हूँ, अपने comfort zone से बाहर नहीं आया हूँ. और अगर आप नहीं आए तो just think of that seed, think of that dirty water, think of a sofa or a table or thing which is gathering dust. You don't want to end up like them. So it is high time that you bring change. वो किस चीज़ में है वो आपकी मर्जी है, ठीक है? इसको देख के आपको ज़हन में क्या आता है? So I want you to help me out here. Corona or change? What happened? What comes in your mind? Corona and change. जी. बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है. पहले सारी चीज़ें मतलब वो फिजिकल होती थी, फिर ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मूव हो गए. Right. इंडस्ट्री में बहुत बदल गया है. आप में से कोई? जी. मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया. मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया और कुछ? इंडिपेंडेंट बनाया. कोरोना ने हमें इंडिपेंडेंट बनाया. बड़े मार के तुम जाएगा, जॉब खत्म हो गया, अब इंडिपेंडेंट बन जाएगी, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी. No, he's absolutely right actually. That's a very good input. आप में से कोई? Yes? Relate corona with change. change. What relationship do you see between change and corona? सेहतमंद थे, बीमार हो गए तो ये change है. So let's talk about some other change beside that. So corona brought in a lot of changes, a lot of changes. इस pandemic ने लोगों को, I mean, there was a loss of valuable human lives and mask or distance और बहुत ज़्यादा uncomfortable situation थी. Yet a lot of people took it as a challenge. Online learning, remote work, कहीं भी दुनिया से वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं. And this whole new concept came in. कितना लोगों के लिए गाँव में बैठ के, शहरों में, टाउन्स में बैठ के easy हो गया है एक्सेस करना, काम को ढूंढना. Now employers are coming up with these opportunities if you want to work remote. पहले बहुत रेयर था, अब बहुत ज़्यादा है. So this is a very positive change. Then लोगों ने नई हॉबीज़ ली because they were in quarantine. ठीक है, एक्सरसाइजिंग, बुक रीडिंग, न्यूज़. बहुत ज़्यादा लोगों ने IT में बहुत एक्सेल किया because they were alone, they had nothing to do. कुकिंग सीखी ख़वातीन ने. So knitting, cooking, people had to adjust to the situation. And in order to adjust to the situation, they did something positive. और सबसे बढ़ के जो ख़वातीन ने घर में बैठ के अपना काम शुरू किया, जितना लोगों ने इसमें अर्न किया क्वारंटाइन में, घर से बना के खाना भेजना और रेडीमेड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करना डोर स्टेप पे, people earned, they minted money out of it. And that's adapting to change. डिप्रेशन में नहीं गए, खुद को बीमार नहीं कर लिया. दे अडेप्टेड टू द चेंज कि ठीक है, कोरोना आ गया है, नाउ वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर पीपल, वी कैन नॉट मीट देम फेस टू फेस, आई हैव टू बी विद इन दीज 4 walls, and they earned out of it. So what an excellent example of adapting to change.
So, now let's come down to this book. How many of you have read this book? So you'll be able to comment. So, Who Moved My Cheese by Dr. Spencer, an amazing way to deal with change in your life. So, before we go on with that, let's quickly talk about what we have learned so far. कोई एक जुमला जो आप अभी तक कह सकते हैं कि change के बारे में. Can you summarize all that you people have told me? मैंने कुछ नहीं बताया. आप लोग ने इसको देखा and you gave me your comments, which was a good thing. So what do you say? Change is important for the growth. Change is equal to growth. And want to be enhance our personality. Sorry? Should be enhance our personality. We must work on our set skills and enhance them. Right? And Blessing in disguise. change is so you're talking about corona. उस reference में कोई बहुत major incident, accident, कोई बहुत bad instance हो जाए, so you can take it as a blessing in disguise. See what benefit you can take out of it. अब एक चीज़ जो होनी थी वो तो हो गई. So how can you adapt to that particular change and use it in your benefit? अब आप इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है ना? So let's talk about this book, which tells us how to deal with change in your life. So, if you have read the book, Who Moved My Cheese, it's a story about change that takes place in a maze where 4 amusing characters look for cheese. So, here are our 4 characters, 1, 2, 3, 4, and looking for cheese. It's Hem and Haw and the rats. Do you know why these poor creatures do not have any names, whereas here they have names? Why they named these creatures and not the rats? ये mice हैं और वो rats हैं. Something else. Why hem and haw? Do you know what is hem and haw? What is hemming and hawing? What is hem and haw? बड़ा सोच समझ के इस बुक में ये नाम रखा गया है. It's not for any other reason. It is for a particular reason. Why hem and haw? So, for example, आपका दोस्त आपसे कहता है यार आप मेरे साथ रात डिनर पे चलेंगे. आप कहें काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन let's see मैं अगर वक्त निकाल पाऊँ या ना निकाल पाऊँ. So, what are you doing? What are you doing here? Thinking. Are you clear-headed? No. Right? Is your friend gonna get frustrated? Is the person gonna get frustrated? है ना? सोच भी लो भाई, decide कर लो क्या करना है. So hem and haw represent when you're in a thinking process, because it's a hemming and hawing. It is an idiomatic expression actually in English language. It refers to the sound of that people make when they are trying to buy time, gather their thoughts, or express uncertainty, that I'm not certain about it. So let me think. The phrase is often used to describe someone who is hesitant, unsure, or unable to make a clear and direct decision or statement. So this is hem and haw. आपको mice और rat के बारे में difference पता होना चाहिए. Mice they have big ears. They are more cute. They are cuter than rats. Rats are sturdy, big, and considered, shouldn't be saying it, but uglier. And mice are considered cuter. Yes. So the names hem and haw, इसको ज़हन में रखें. Why hem and haw? वो आपको आगे जाके पता चलेगा. So once long ago in a land far away, there lived 2 little rats and 2 little mice and mice हमारे कौन हैं? Hem and haw, who ran through a maze looking for cheese because they love cheese. They were hem and haw, the mice, scurry and sniff the rats. So जो rats के नाम हैं, so they have given them names as well. They shared something in common. What is that? Every morning, they would go out into the maze looking for their favorite cheese. In the beginning, all 4 characters find a large cheese station where they can satisfy their hunger. So it was easy for them. बाहर आए, यहाँ पे पता है cheese पड़ा है, खाया और लेके आ गए. Can you relate it with your life? कैसे?
और जब मतलब हम स्टूडेंट्स हैं ना तो अपने घर से सारा खर्चे मिल रहा है कि बस हमें पता होता है कि वहाँ से आना है यहाँ पे लगा देना अभी काम वगैरह वेरी गुड, पता है कि घर से पैसे आने हैं और लगा देने हैं. सो आई नो कि आई हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. एनीबडी एल्स? कैन यू रिलेट इट विद योर लाइफ? आपको पता है कि मामा ने जाने तक खाना पका देना है, आप आएंगे तो ये चीज़ बनी हुई होगी. ठीक है, आपको पता है कि मेड आएगी, वो सफाई आने तक कर चुकी होगी. सो एवरीथिंग इज प्लान्ड. सो एवरीथिंग इज प्लान्ड. However, one day the cheese disappears, and Hem and Haw, who are resistant to change, why are they? So that's why their name. जाए ना जाए, करें ना करें. They are resistant to change, become hungry, angry, and blame others for their misfortune, because they're not ready to accept the change, because they're not certain, they're not sure, they're not decisive. They're always 50-50. They're thinking, right? On the other hand, Sniff and Scurry, who are more adaptable, quickly leave the old station in search of new cheese, because they're not hemming and hawing. They're not going to waste their time in hemming and hawing. ये हो गया है, अब इसको ये कर लेना चाहिए. Eventually, Hem and Haw realize that their resistance to change has prevented them from finding new cheese. अगर आपके घर से इनकम आना बंद हो जाए, so would you hem and haw? What would you do? शुरू में तो बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन अब कुछ करना तो पड़ेगा ना. मतलब कुछ करना तो पड़ेगा. अगर हमारी 9 to 6 की जॉब्स हैं, 9 to 5 की जॉब्स हैं, एंड वी नो कि हमारी मेड छोड़ चुकी है काम, so हम क्या करेंगे? Try to timetable. Timetable, very good. Can you explain it? Can you elaborate? What do you mean by change of timetable? इस तरह से प्लान करेंगे कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज कर सकें. Absolutely. You have to come up with a solution. आप ये नहीं करेंगे. कुछ लोग ऐसा भी करेंगे, घर गंदा रहे फिर हफ्ते के हफ्ते सफाई कर लिया करेंगे. ठीक है, we have a gentleman जो हफ्ते के हफ्ते कपड़े चेंज करते हैं और धोते भी हैं. So why not? हाँ? Backup, अच्छा. Good. So we are not going to rely on the situation. We have to come up with a plan immediately. हम hem and haw में, hemming and hawing में time waste नहीं कर सकते, because हमारा future सफ़र करेगा, हमारी job सफ़र करेगी, हमारी family सफ़र करेगी, हमारे बच्चे सफ़र करेंगे, eventually हमारा घर सफ़र करेगा. At the end of the day, ये सफ़र करेगा. The very individual, right? So they learn that change is inevitable, and the faster they adapt to it, the more successful they will be. So my question to you is, in this story, what do you think? What is cheese and what is maize? These are the situation and ways are present ourselves. Maize आप हैं? चीज जो situations होती है बदलती रहती है. Cheese situation है जो बदलती रहती है. Okay, what else? कोई और? Give it a try. Yes, Shiza. मेज कंफर्ट जोन है और चीज जो है वो चेंज है. Can you explain? मेज बेसिकली उनका कंफर्ट जोन था ना, जहाँ पे उनको खाना मिल जा रहा था और वो खाने जा रहे थे, बट क्योंकि वहाँ पे वो चीज खत्म होना शुरू हुई और फिर तो फिर चीज़ क्या हुआ? एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे. The hemming and hawing. So फिर चीज़ क्या हुआ? Maize is your life. Maize is your life. तो फिर चीज़ क्या हुआ? Yes, it's your goal. So आपने एक गोल सेट करना है या उसको अचीव करने के बाद आगे भी कुछ? आगे भी कुछ? Move forward. Absolutely correct. Cheese, which is a metaphor for what we want to have in life. It is what we want to have in life. And then if the cheese is not there, if the required salary is not there, if the comfort is not there, if your maid is not there, the source of income is not there, जो पुरानी थी, तो हम hemming and hawing में अपनी लाइफ तो तबाह नहीं करने वाले. ठीक है ना? वो precious time जो हमारे पास पता नहीं कितना है, वो तो नहीं ज़ाया करने वाले. We have to come up with a solution. And maize is in the story represents the path you take to achieve your goal. उस मेज़ में आप घूमते रहेंगे या रास्ता तलाश करेंगे.
ठीक है ना, गोल गोल घूमना है ना सोल्यूशन के इर्द गिर्द, किसी भी सोल्यूशन पे ना आना बाहर. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू hem and haw, or you are going to take a decision? Think about it, take a decision. Yeah, take an initiative. Very good. So my question to you again is, so why accept change? Because change is scary. So why accept change? Again, let's have a recap. आप लोगों ने मुझे सारा बताया. I'm just changing slides. Have you noticed that? I'm only changing slides. You guys are coming up with it. So why, if change is scary, then why we have to adapt to it? Why? मैं वो सर ने एक बात की थी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली, उससे उधर बैठे वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक ठीक भी थी. अगर आप चेंज से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं तो मुझे इस चेंज से ये फायदे होने वाले हैं, ठीक है, मतलब पेन होगा लेकिन इसके जो फायदे हैं वो पेन से ज़्यादा है, तो फिर आप चेंज के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं आप. अच्छा, डिड यू गेट हिम? ही इज सेइंग कि वहाँ पे किसी ने ये बात कही कि विच आई एग्री विद यू, ऑफ कोर्स आई विल सेकंड यू हियर, दैट अगर चेंज अपने अंदर लाने से पहले हम उसका बैकग्राउंड चेक करें कि इस चेंज से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं क्या रीप करूँगा बेनिफिट्स, और अगर वो मुझे सॉलिड लगते हैं देन आई विल गो फॉर दैट चेंज. फिर वो मुझे इतनी स्केरी नहीं लगेगी. मैम डेफिनेटली कोई चेंज तो वैसे नहीं करेगा, वो चेंज करेगा उसमें अपना कोई नई अपॉर्चुनिटी देखना होगी या कोई ना कोई आपको चेंज लाना होगा. हाँ. किसी को हेल्थ में लाना है, किसी को एजुकेशन में लाना है, वो केयरिंग करेगा. वैसे तो कोई चेंज, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो जो होते हैं कोई इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, वही चेंज है. सो अगर कोई बंदा प्रोएक्टिव नहीं है और उसको वो अपनी जॉब में बहुत अच्छी सैलरी है, कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हुए हैं, तो फिर तो कोई कॉज नहीं है मेरे पास. आई डोंट हैव अ ड्राइव टू चेंज. सो फिर क्या? इंसान जो है वो मेंटली फिर उसको पीस नहीं कई दफ़ा अवेलेबल होता. वो एक ही काम कर करके सोचता है कि मैं कुछ अचीव नहीं कर रहा. अगर फॉर एग्जांपल जब जॉब मिलती है तब हम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके बाद एक वक्त आता है एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ और अचीव करना चाहते हैं, हमें मेंटली स्कूल नहीं मिल रहा. बेहतर से बेहतर की जुस्तजू, और ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने डाला है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव. दैट्स ह्यूमन नेचर. हमें अगर एक मिल गया तो हमें अब दो चाहिए ही चाहिए. एक के साथ एक मुफ्त, जो भी लाना दो लाना. सो वी ऑलवेज वांट मोर, right? And that justaju, that answer in our life, in our personality, in our psyche pushes us. So at times if you fail to find a cause, if you fail to find a drive, tell yourself कि कुछ अरसे के बाद ठीक है मैं अपने comfort zone में हूँ, but क्या मैं स्मेल तो, मेरे स्किल सेट स्मेल तो नहीं करना शुरू कर देंगे? ये जो यंगस्टर्स और आ रहे हैं ये नई IT के स्किल्स के साथ, नए बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, even हमारे से छोटे बच्चे have better knowledge than us, they have better command over language, they have better command over IT skills. उनको मेरे से ज़्यादा पता है. I take guidance from my child कि अच्छा ये डाउनलोड करना है, ये नहीं हो रहा, ये क्या, ये how to go about things. So we have to, even if it is scary, we have to adapt to change. Even if we fail to find a cause or a drive, just think about this. The competition is, it's not even it's cutthroat competition, it's neck to neck. ख़वातीन अब जो बिल्कुल नहीं आती थीं, अब they are flourishing, they are grooming, and they are posing a I wouldn't say a threat but a challenge to the gentleman here, right? So to compete with the competition, क्योंकि mediocre का ज़माना नहीं है अब. अगर आप mediocre हैं, आप अच्छे ट्रेनर हैं, so it's not enough. You have to have an edge over somebody. हम अगर restaurants की example लें, there are too many restaurants. There are too many restaurants actually, है ना? Every nook and corner, a new restaurant is mushrooming. So कौन सा restaurant चलेगा जो कुछ different provide कर रहा है, कुछ नया दे रहा है, कुछ अछूता, कुछ अनोखा, बाकियों से हटके. And there is a homework behind it. They take a market survey. कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर. अच्छा, so ये चीज़ provide नहीं हो रही. चेंज इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई चेंज नहीं करता तो उसका हाल वही होगा जैसे वो गंदे पानी का था. जो गंदे पानी का हुआ है कि आप अपने आप में मगन हैं, आप अपने आप में satisfied हैं, आप कुएं के मेंढक बन सकते हैं. बाहर निकलिए और देखिए कितना कंपटीशन है, कितना लोग जो है वो स्किल्ड हैं. सो कुएं के मेंढक ना बनिए.
come out of your comfort zone and see कि दुनिया कैसे flourish कर रही है. mindset रखना चाहिए। Growth mindset, because if you are not changing, it means you're not growing, you are dead, and dead things stink. Yes, please. जी जी. What a wonderful quote. Can we have a huge round of applause for this young man here? Absolutely. भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रींगो, बस एक जगह खड़े मत रहो, क्योंकि आप स्टेगनेंट हुए, आपको चूंटियां खा जाएंगी, आप खत्म हो जाएंगे. So don't stay there, don't be stagnant, don't be still. That's correct. You have just given me the takeaway. Change is bound to happen. आप चाहें या ना चाहें, या तो आप उस चेंज के आने से तबाह हो जाएंगे, और अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करके उसके फ्लो में चलें तो यू विल राइड द टाइड, और आप उसमें से आगे निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे. ठीक है जी, प्लीज़. जैसे नोकिया है, नोकिया एक वक्त में बड़ा टॉप पे था और ब्लैकबेरी था, आज वो एप्पल है, लेकिन उसने अपने में चेंज नहीं लाया. नोकिया के सीईओ ने कहा कि मैं अपने वक्त के साथ साथ ट्रेंड के साथ अपने अपडेट नहीं किया. Exactly. बिल्कुल डेड हो गया आईफोन. What a wonderful example. So you did that for a round of applause. So let's have it. And this is absolutely correct. अगर आप चेंज नहीं लाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे. अपने ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को बदलते रहे. Absolutely. Absolutely. दुनिया में किन लोगों के नाम अभी तक चल रहे हैं? Who came up with something different. जो दुनिया में चेंज लेके आए, उनका नाम दुनिया में चल रहा है. और अगर हम दुनिया में कुछ चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लेके आएंगे तो करोड़ों अरबों और लोगों की तरह हम भी ख़त्म हो जाएंगे. राइट? सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट चेंज इज़. गेट रेडी फॉर द चीज़ टू मूव. इसका क्या मतलब है? एक गोल को आपने अचीव कर लिया तो उसको भूल के दूसरे गोल की तरफ. Yes. So there's not just one cheese. There's variety. आपने एक चीज़ अचीव की, नहीं लें. आपने एक चीज़ को टारगेट किया, गोल सेट किया, और वो नहीं अचीव हो पा रहा because there are more hurdles now than your expectation. So you have to cross those hurdles. Expect करें कि चीज़ इधर मूव करेगा. So don't be hem and haw, right? Move forward and be proactive. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy the new cheese. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy the new cheese. ये लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडवेंचरस होती है, लेकिन हम एक ही चीज को पकड़ कर उसी को कहते हैं कि हमें ये काम किया, हमारे लिए ये काफ़ी है. ठीक है. सो आपने एक चीज़ को एक्वायर किया, एक्सपर्ट हुए, ठीक है, उसको एंजॉय कर लिया. अब एक नई चीज़ को एंजॉय करें. ठीक है. A lot of people find it very difficult to even change their dish. That हमेशा जाके नहीं मैंने KFC खाना है, या मैंने यहाँ जाके बस यही वाला सूप ऑर्डर करना है. Try new things. And I have witnessed कि a lot of people find this very thing so difficult कि नहीं, मैंने कोई और चीज़ ऑर्डर नहीं करनी, मैंने यही ट्राई करना जो मैंने किया हुआ था, मैं यही खाऊंगा या खाऊंगी. So yes, go ahead with new things. And the book also says that the old cheese would start stinking. ठीक है. So if you read this book, growth mindset, overcome a fear of the change. see, you will have to start with baby steps. Start with your clothes. Yes. ये एक देखो, ये आपने ये अपने लिए एक्सक्यूज़ बनाया कि नहीं मैं अपने टाइम बचाता हूँ, तो क्यों ना आप अपना टाइम टेबल चेंज करो. ठीक है. You have to adapt yourself according to the new change. Instead of you, कोई लेट्स टॉक अबाउट ABC, वो एक ही कपड़ा रोज़ पहन रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसको धोने का, मेरे पास टाइम नहीं है नया सिलवाने का, मेरे पास टाइम नहीं है नया बाय करने का. दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़. आप अपना टाइम टेबल चेंज कीजिए. सो आप अपना होमवर्क करें, अपना कागज़ पेंसिल पकड़िए कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, कहाँ कहाँ तक है. जैसे मैंने स्टार्ट में पूछा क्या हेयर कट आपके लिए, वी टॉक अबाउट वेरी फ्यू थिंग्स, वेरी टाइनी माइनी थिंग्स. हेयर कट ईजी है नहीं ईजी है, एक शहर से दूसरी जगह जाना ईजी है नहीं ईजी है, आउटलुक अपनी चेंज करना ईजी है नहीं ईजी है. स्टार्ट फ्रॉम देयर. स्टार्ट कि मैंने अभी पिछले 6 महीनों में क्या चेंज लाया है अपने अंदर. मैंने कोई नया स्किल सेट सीखा, मैंने कोई नई बुक पढ़ी, मैंने कोई नई एक्टिविटी, कोई नई हॉबी स्टार्ट की, मैं कुछ नए लोगों से मिला, क्योंकि नए लोगों से मिलना मतलब नई चीज़ें एक्वायर करना. एवरी ह्यूमन इज़ अ यूनिवर्स इन इट्स ओन.
जब आप लोगों को एक्सप्लोर करते हो, आप उनके एक्सपीरियंस से, उनकी बातों से बहुत कुछ लर्न करते हो, ठीक है? सो बी योर ओन जज. सो हाउ टू ओवरकम इज़ टू बी योर ओन जज एंड लिस्ट बनाए कि कहाँ कहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं किन किन जगहों में रुक गया हूँ और मेरी ग्रोथ नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. वो चाहे एक हेयर कट ही क्यों नहीं है आपकी, कि नहीं यार आई एम सो स्केयर्ड ऑफ अ हेयर कट, वाई, व्हाट इफ आई वुड लुक अगली बट आई वुड लुक डिफरेंट एंड पीपल वुड से यार आज डिफरेंट लग रहे हो. शायद वो ये ना कहें बहुत अच्छे लग रहे हो बट डिफरेंट लग रहे हो. सो मेक अ लिस्ट फॉर योर सेल्फ एंड मूव ऑन विद दैट. सी कि आपका कहाँ कहाँ बैरियर लगा हुआ है. मे बी आपको पता लगे कि मैंने पिछले 2 साल में कोई नई किताब नहीं पढ़ी, नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस बुक्स, मैंने पिछले 2 साल में कोई नया फ्रेंड ही नहीं बनाया, मैंने पिछले 2 साल में कोई नई खाने की चीज़, न्यू कुजीन ट्राई ही नहीं की. सो आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लिटिल थिंग्स. अभी तो हम अपने फील्ड और जो हमारी एक्सपर्टीज़ है उसमें तो आए ही नहीं हैं. सो यू आर गोना स्टार्ट फ्रॉम विद इन, अपनी पर्सनल लाइफ से फिर आप आगे बढ़ें. दैट विल गिव यू अ ड्राइव. चेंज इज़ नॉट सो स्केरी, मैं इतना भी बुरा नहीं लग रहा, शीशे में लुक एट योर सेल्फ, ठीक है, आई एम ओके, एंड दैट विल गिव यू अ बूस्ट एंड अ लिटिल कॉन्फिडेंस. आई कैन एक्सेप्ट फ्यू मोर चेंजेस. आज ये बदलते हैं, अब ये बदलते हैं, अब ये बदलते हैं. सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. दो वो पहला कदम आपने किस चीज़ से लेना है, दैट्स योर चॉइस. और वो आप कैसे लेंगे, इफ़ यू हैव अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सॉरी, एनालाइज योर सेल्फ. येस, एग्जैक्टली. The story emphasizes the importance of accepting and adapting to change rather than being resistant to it. It encourages readers to always look for new opportunities. Now, this is a very good book that you should look for. Online, is it available, Zisha, online? It is. So, oh yes, we had the online copy of it. So maybe you guys can share it with these people and have a look at this book. So that can be a new change. अब आप नहीं यार इंग्लिश में नहीं, मैं नहीं पढ़नी, मुझे नहीं समझ आएगी इंग्लिश, छोड़ो, कोई उर्दू की देखूँगा, बुक ही पढ़नी है ना. Try it. Challenge yourself. ये भी एक change है. Challenge yourself. I am going to spend 1 year on this book, but I am going to read it. I'm going to have a dictionary, online dictionary, physical dictionary, and I'm going to read it and study it. It is a very reader-friendly book. It's a lovely book. It's a lovely book that you should read. Last but not the least, this is my last slide. So, इससे आपको देख के कुछ याद आता है? एक स्टोरी है, एक 2 परिंदों की जो एक शाख पे बैठे हुए थे. मुझे एक ही मिला, मैंने एक लगा दिया. हैं? दूसरा था वो उड़ गया किसी वजह से. Absolutely. Does it ring any bell? इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते. So that's the very first change we need to bring. Okay, इंशाल्लाह ताला. So here's the story. तो एक बंदे ने 2 शिकारी परिंदे ख़रीदे और उसने सुना था कि ये बड़ा ज़बरदस्त शिकार करते हैं, क्या इनकी उड़ान है, क्या इनकी मैग्निफिसेंट फ़्लाइट है. सो वो जब 2 परिंदे आए, वो एक शाख पे बैठ गए. उनमें से एक परिंदा रोज़ सुबह उड़ के कोई ना कोई नई चीज़ पकड़ के ला रहा था और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शिकार कर रहा था, जबकि दूसरा बर्ड डिड नॉट मूव अ बज, डिडंट मूव एन इंच. तो वो जो ओनर जिसने बाय किए थे, ही गॉट वरिड कि भाई इसको कुछ करो, एंड ही कॉल्ड मेनी पीपल कि आओ इसको उड़ाओ, ये उठे, ये हिले अपनी जगह से. And nobody was successful. And somebody eventually came और उसने उसको, the next day when that guy, that owner of the birds came, तो वो bird वहाँ पे नहीं बैठा हुआ था, वो उड़ चुका हुआ था, यानी कि ये भी नहीं था. तो आपके ख्याल में उसने क्या किया? शू 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 नहीं, something else. ये ऑप्शन नहीं है. Think. And that would help you find your answer. Change. तो क्या चेंज? Absolutely correct. Can we have a round of applause for him? वो शाख किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे कंफर्ट जोन को. उसने कहा ये इस शाख पे बैठ के इसको सब कुछ मिल रहा है. He is not gonna move from here. इस शाख को काट दो, और जब ये शाख कटेगी, so he will have to fly. आप देखें आपकी कौन सी शाख आपको रोक रही है, आपकी ग्रोथ, आपकी चेंज को कौन सी शाख रोक रही है? आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंस, क्योंकि वो पैसे भेज रहे हैं, आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि बहुत साल हो गए हैं,
या बस ठीक है एवरेज मार्क्स लेके एवरेज सी जॉब करके तो ठीक है, व्हाट्स बिग डील इन दैट। आपने अपनी शाख काटनी है वो, ठीक है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सो द होमवर्क फॉर टुडे इज़ लुक फॉर दैट शाख जिसकी वजह से आप एक जगह पे बैठे हैं और खड़े हैं और स्टक हुए हुए हैं, ताकि आप उड़ान भर सकें, आप आगे जा सकें, आप बेहतर से बेहतर शिकार, यू नो व्हाट शिकार इज़ राइट, या गोल चीज़, यस सक्सेस को ले सकें। एक दफ़ा आपको सक्सेस का फ्लेवर मिलना शुरू हो गया, then there is no limit, then sky is the limit, even not even sky, go beyond that. Got it? So you how to overcome and how to know कि मुझे क्या रोक रहा है to adapt the change, ये शाख, so look for your शाख। Thank you very much. If you have any question, please ask. हमारा माइंड, देखो एक बुक पढ़ के तो माइंड चेंज नहीं होगा ना, ये तो जब हमने एक सीड को एक दरख्त में चेंज करना है, अब एक इतना सा एक इमेजिन करो, एक बीज जो शायद 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक तनावर दरख्त, कैन यू इमेजिन कितना मैग्नीफाई है, कितना डिफरेंस है। तो क्या एक पानी के कतरे से वो इतने में आया, क्या एक बकेट की वजह से आया? So there's a combination of efforts, lot of efforts, पानी, बारहा, निगहदाश्त, धूप, छाँव, ज़रख़े, फर्टिलाइज़र। So ऐसे ही हमारा ब्रेन है, वो आपकी एक किताब पढ़ने से, साल में एक बुक को पढ़ लेने से वो चेंज नहीं होगा। There has to be a continuous effort for it. अब आपने ये देखना है कि मैं क्यों नहीं बुक पढ़ रहा, मुझे एक why, that's very good darling, that's very good, but again the point is अपने आप को ये समझाइए कि एक किताब पढ़ने से तो बदलाव नहीं आएगा। हमारे पेरेंट्स ने कि हमें एक चीज़ एक दफ़ा सिखाई, इसको ना तोड़ो, इसको ना छेड़ो, एक दफ़ा। सो इफ़ यू रिकॉल हाउ मेनी टाइम्स दे हैड टू टेल अस, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑन ऑफ का बटन नहीं है, एक दफ़ा बता दिया समझ आ गई, ऐसा तो नहीं है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस हैपनिंग हियर, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कंसिस्टेंटली, एक के बाद दूसरी पकड़ें, छोटी छोटी बुक से स्टार्ट करें, एंड दिस इज़ अ गुड स्टार्ट एक्चुअली, यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक। 1% improvement from day by day. I couldn't get you, can you explain that? जो रोजाना अपने आप को 1% improve करते हैं तो वो साल भर 365 मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैंने कहा कोई नाम बता दें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि वी विल शेयर द नेम्स ऑफ द बुक्स। आप यहाँ पे बहुत सारी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, आप तस्वीर खींच लें इनकी और इनको। रियली तकरीबन नहीं, फिर उनको देखने से आगे चले जाएं खोल के, ठीक है। और प्लीज स्टार्ट विद दिस बुक, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल बुक एंड दैट शुड हेल्प यू। और ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको बुक्स आपको लगता है आपने बहुत पढ़ ली हैं तो चेंज पोइट्री पढ़ना शुरू कर दें, इकबाल की पोइट्री पढ़ें और देखें कि आपको विगर मिलती है कि नहीं मिलती, आप में एनर्जी आती है कि नहीं आती है ना। हाँ, दैट्स अ गुड चेंज। बुक्स पढ़ ली अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, दैट्स अ गुड चेंज। It is an art, so if you have read a lot, try to implement it on you. थोड़े बाल उगा लें, शायद कुछ रुक जाए अंदर। Practical using. Well, jokes apart, thank you very much everybody. I know that you have other engagements as well. Have a great evening and I hope it was fruitful and you have gathered, अगर आप में कुछ 1% भी आपके ज़हन में रह गया, that's enough. उसको लेके आगे चलें। Sure, you can take a picture of that. There you go, where it is. Oh, yeah, here it is. So you can take a picture. It is available online. You can download it. या online आप पढ़ सकते हैं. But it is an amazing book. अगर आपने lateral thinking पे नहीं पढ़ा हुआ, उसको पढ़ें. That's also helpful. Because that's a new way of thinking. That's a changed way of thinking. Normal से हट के सोचना, out of the box सोचना, तो दोनों की बेशुमार बुक्स हैं इस पे। And the very first book that you can, the easy one is lateral thinking. तो उसको पढ़िए, ठीक है? Lateral thinking. इसी तरह हमारी एक मंथ में इनकम
साइड हसल है ना, एक साइड हसल होना चाहिए कि आपका एक फिक्स्ड है इनकम, तो साथ में थोड़ा थोड़ा और क्या आप कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आता रहे, कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहे. हाँ, exactly. So the cheese is gone and you're nowhere. So thank you guys. Thank you so much. Have a great evening. Allah Hafiz. Thank you, thank you, thank you.